Now I will start the next topic, which is insectivorous. Do you know that some plants can eat animals? For example, Venus flytrap, picture plant, can trap insects and digest them. Such plants which feed on insects for obtaining their nutrition are called insectivorous plants. कुछ प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं क्योंकि वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड. Insectivorous plants may be of green color or some other color. They can prepare their own food. The insect on which they feed fulfill their nitrogen requirement. ये plants किसी भी कलर के हो सकते हैं और वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और वो दूसरे प्लांट पे बेसिकली नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए ही डिपेंड होते हैं. In picture plant, picture like structure is modified part of the leaf. The apex of the leaves forms a lid cover over the picture which can be opened or closed down. As you can see in the figure, इस प्लांट के ऊपर एक लिड टाइप का दिया हुआ है जिसको हम ओपन और क्लोज वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है. Inside the picture there are hair like structure which are open which are directed downwards. When an insect sits on the picture, और इस पिक्चर प्लांट के अंदर हेयर लाइक अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जब इस प्लांट पे इंसेक्ट्स आके बैठते हैं when they sit on it the lid closes. ये लिड जो ऊपर ओपन है वो क्लोज हो जाती है and that insect slips down and entangled into the tiny hairs. और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नीचे जाके जो उनके छोटे छोटे हेयर्स हैं उनमें पूरा फंस जाते हैं. Plants secrete digestive juices to digest the insect and after that these plants secrete some type of juices to digest the insect. Such plant grows in soil that is not rich in nutrients and use the nutrition based from the insect to supplement the food they require by photosynthesis. इस तरीके के plants उन मिट्टी में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता. That is why they depend on insect for their nutrients. Next is saprophytic. Saprophytic means, here sapro means decaying matter and phytis means plants, which means ऐसे प्लांट्स जो कि ऑलरेडी डेड मटेरियल डेड पार्टिकल्स पर डिपेंड रहे अपने खाने के लिए. इन saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड saprophytes. फॉर एग्जाम्पल मशरूम, यीस्ट एक्सेट्रा. दीज आर नॉन ग्रीन इन कलर एंड डू नॉट अंडरगो फोटोसिंथेसिस. ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ग्रीन कलर के नहीं होते और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. They secrete digestive juices on the dead and decaying material and convert into a solution and then they absorb the nutrients for it. ये जो हैं जो भी बेकार मटेरियल रहते हैं जो ख़त्म हो चुके मटेरियल उनको एक सॉल्यूशन में टर्न कर लेते हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. After that, you must have observed what patches on pickles, leather, cloths and other articles they are left in hot and humid weather for a long time. These white patches are fungi. During rainy season they cause a lot of damage to many things. For example, अगर हम किसी तरह का कपड़ा या मटेरियल बहुत दिनों तक पानी वाली या नमी वाली जगह पे छोड़ देते हैं तो एक वाइट मटेरियल उसके ऊपर बन जाता है, उसको हम लोग फंजाई कहते हैं और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है. जनरली द फंगल spores are present in the air. When they land on wet and warm things they germinate and grow. ये जो स्पोर्स होते हैं जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जहाँ पे उनको नमी मिलती है लाइक वाटर वो वहाँ पे जर्मिनेट बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और बड़े हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज symbiosis. Sym means together and bois means life. In this mode of nutrition two different kinds of organisms work together for their mutual benefit. इस तरह के न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर अपने खाने के लिए एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री. द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगाई help in taking water and nutrients from the soil. Here what happens? Some fungi and roots live together. In return what happens? Roots से जो भी मटेरियल पूरे प्लांट के लिए जा रहा होता है वो फंजाई भी अपने अंदर ले लेता है और फंजाई किस चीज़ में हेल्प करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से प्लांट की तरफ पहुंचाने में. फॉर एग्जाम्पल इन लाइकेंस एल्गी विच इज ऑटोट्रॉफ एंड फंगस विच इज saprophyte live together. Algae containing chlorophyll synthesis food. जैसा कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एल्गी जो कि एक ऑटोट्रॉफ है और फंगस जो कि एक saprophyte है
वो दोनों एक साथ रहते हैं. Why? Because algae containing chlorophyll synthesis food and supply it to the fungi, while the fungi supplies water and minerals. यहाँ पे algae जो रहता है वो क्लोरोफिल की वजह से फूड को सिंथेसिस कर सकता है और सब फंजाई को सप्लाई कर सकता है, जबकि फंजाई जो होता है हमारे वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है. बोथ लिव टुगेदर इन इंटीमेट एसोसिएशन एंड अनएबल टू लिव इंडिविजुअली. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स ऑल्सो एक्सिबिट सिम्बियोटिक relationship. Now the last topic of this chapter is replenishment of nutrients in the soil. The meaning of replenishment is कि हम कैसे फिर से सॉइल में वो वापस न्यूट्रिएंट्स ला सकते हैं जो सॉइल में ऑलरेडी पहले प्रेजेंट थे. Plant absorb mineral nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. So farmer spread manure or fertilizers which contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. As you know that many plants ग्रो इन द सॉइल. बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं हमारी मिट्टी में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी से या सॉइल से लगातार उसके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते रहते हैं. इन दिस मैनर सॉइल गेट्स डिप्लीटेड, या आप कह सकते हैं कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है. इसको मेंटेन रखने के लिए फार्मर्स जो होते हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. In order to synthesize protein, crop requires a lot of nitrogen. After a harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. Nitrogen gas is present in the atmosphere in abundance, but plants cannot use it as they can use carbon dioxide gas. Nitrogen should be available in the soluble form. और प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए क्रॉप को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन आफ्टर अ हार्वेस्ट जब हम सारे पेड़ों को या पौधों को काट लेते हैं मिट्टी में से, वो नाइट्रोजन कम हो जाती है. तो वो नाइट्रोजन फिर कैसे सॉइल को मिलती है? थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. राइजोबियम अ बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म. अब ये एटमॉस्फेयर से कैसे नाइट्रोजन सॉइल में वापस जाएगी? एक बैक्टीरिया के जरिए. ये बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. ये बैक्टीरिया खुद का खाना खुद नहीं बना सकता. दैट इज वाई इट लिव्स इन रूट्स ऑफ पीस, ग्राम्स एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. दे हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम. This association is beneficial for the farmer as they do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. दूसरी तरफ प्लांट्स जो होते हैं फूड एंड शेल्टर, वो एक तरह का खाना भी देते हैं और रहने की जगह भी दे देते हैं बैक्टीरिया को. इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और नाइट्रोजन और फार्मर्स को नाइट्रोजन रिच मैन्योर ऐड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हेल्प कर देता है नाइट्रोजन को सॉइल में वापस लाने के लिए. इन दिस वे दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर.